Hello students, good morning. Jai Narayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we'll start lesson number 1, a large number. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 1, large numbers. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned. So first we had learned the 4-digit number. In the 4-digit number have a 4 digit. In the 4-digit number have a 4 digit. Greater 4-digit number is 9,999 and smallest 4-digit number is the 1000. Then after we had learned the 5-digit number. In the 5-digit number, greatest 5-digit number is the 99,999 and smallest 5-digit number is the 10,000. Then after we had learned the 5-digit number on a abacus. Then after we had learned the 6-digit number. In the 6-digit number, greatest 6-digit number is the 9,99,999 and smallest 6-digit number is the 1 lakh. Then after we had learned the exercise 1.3, then 4 also done, then place value. Then after we had done the expounded form, how to convert standard number into the expounded form and standard number into the expounded form. Then after we had learned the comparing number. Then after we had learned the comparing number. Then successor and prediction. Then after we had learned the successor and prediction. Successor means add the 1 in any number is called successor, and prediction means subtract 1 from any number. Subtract from 1 from the any number. For example, here look at here 5 lakh. 5 lakh subtract successor is the 5 lakh 1. 5 lakh successor is the 5 lakh 1 and predictor is the 4,99,999. 4,99,999 because we are subtract 1 from the 5 lakh. Then after we had learned the extension of number system. So here number up to the 7 digit, 8 digit. In the 7 digit number, so greatest 7 digit number is 99,99,999 and a smallest 7 digit number is the 10 lakh. So then crore, this is the smallest 8 digit number. Smallest 8 digit number is the 1 crore. Smallest 8 digit number is the 1 crore. Then greatest 9 digit number is the greatest 8 digit number is the 9 crore 99 lakhs 99,999. This is the greatest 8 digit number. Then after we had learned the international place value system. This using in the another country. In the international place value system, number up to million. So these also we had learned. Then after we had learned the rounded value, how to rounded value nearest 10, then after 100 and 1000. These also we had done. Then after yesterday we had done the Roman system. Okay, so some rules were done. So look at here rule number 1 is the we will repeat it I, X and C. I means 3, X means I means 1, X means 10 and C means 100. That number is repeated in 3 times. But VLD
VLD, दैट नंबर इज नॉट रिपीटेड, ये नंबर रिपीटेड नहीं होता है, लेकिन IXCM ये जो 4 नंबर्स है ये रिपीटेड होता है। आपको ये लर्न होना ज़रूर है। I मतलब 1 होता है, V मतलब 5 होता है, X मतलब 10 होता है, L मतलब 50 होता है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है, एंड M मीन्स 1000। सो which number is not repeated? VLD means 5, 50 and 500, that number is not repeated. Then after we had learned the addition rule and subtraction rule. अगर bigger number है उसके बाद number आ रहा है small number, 5 is the, V means 5 and I means 1, so 5 is the bigger than a 1, 5 क्या है 1 से बड़ा है। तो जब छोटा नंबर दिया है और बड़ा नंबर दिया है उसके बाद छोटा नंबर है, मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही। और सब्ट्रैक्शन, अगर स्मॉल नंबर है पहले और उसके बाद बिगर नंबर है, बिगर नंबर के लेफ्ट वाले साइड में स्मॉल नंबर है, तब होता है सब्ट्रैक्शन। देन आफ्टर वी हैड लर्न द रूल नंबर 4, अगर 2 ग्रेटर नंबर है और उसके बीच में क्या है, 2 ग्रेटर नंबर है और उसके बीच में स्मॉल नंबर है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब नेक्स्ट वाले नंबर जो भी हो उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या है, 2 ग्रेटर नंबर है और उसके बीच में एक स्मॉल नंबर है, मतलब जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो XIV, X मतलब 10 होता है, I मतलब 1 होता है और V मतलब 5 होता है। तो X मतलब 10 है, अभी यहाँ पे देखो X एंड V ये दोनों बड़े हैं और उसके बीच में क्या है, I है, तो यहाँ पे V में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 10 + 5 - 1 कितना होता है, 5 - 1 4, एंड ये क्या है 14 हो गया। क्या हो गया, 14। So these we had done our last class. Then exercise 1 and example number 1 and example number 2, these also done. Now we will start our today's topic, exercise 1.10. Exercise 1.10, example number 1. Question number A, first number 19. अभी हमें 19 का क्या लिखना है, रोमन नंबर लिखना है। क्या करना है, रोमन नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 9 10 + 1 में कन्वर्ट कर देंगे। हमें राउंडेड वैल्यू ली है, ठीक है। अगर 10 में 9 मिला देंगे तो क्या होता है, 19 होता है। नाउ लुक एट हियर 10 मतलब क्या होता है, x। 10 मतलब क्या होता है, x होता है। देन उसके बाद एडिशन की साइन, 9 किसके पास आता है, 10 के पास आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x में से 1 को, I को माइनस कर देंगे। मतलब ये क्या हो गया, x मतलब हमने ये 10 है, 10 में से 1 को माइनस कर दिया, 10 में से 1 को माइनस कर दिया। अभी दोनों को साथ में लिखेंगे तो x मतलब क्या होता है, 19 होता है। क्या होता है, 19 होता है। 10 मतलब x होता है। 9 को हम कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं, मतलब ये 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। अभी तीनों को साथ में लिखते हैं, x, तो ये क्या हो गया है, 19 हो गया। देन सेकंड नंबर इज 36। ओके, 36 को कैसे लिखेंगे, 30 + 6। हमने कैसे लिख दिया है, 30 को 30 + 6, ठीक है। देखो अभी 30 मतलब हम x को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, x को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो हम इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया। 30 मतलब क्या होता है, हम x, I, C और M, ये जो नंबर है 4, I, X, C एंड M, इसको हम 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसलिए हम अगर इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एडिशन का साइन लिखेंगे, 6 मतलब V + I, V मतलब 5 और I मतलब 1, VI मतलब क्या होता है, 6 होता है। अभी सबको साथ में लिख देंगे तो कैसे, x, V, I।
ये क्या हो गया है, x मतलब 30 हो गया है, v मतलब हो गया 5 और I मतलब 1, तो ये कितना आ गया, 36 हो गया। ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 3 इसके तरह ही है, 39 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, 39 है, तो ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये सेम है इसके तरह। देन 40, देन एग्जाम्पल नंबर 4 इज अ 40। देखो हम 40 है, ठीक है, इसको हम क्या नहीं करेंगे, इस तरह कन्वर्ट नहीं करेंगे। अभी देखो हम 40 है, ठीक है, हम x को सिर्फ 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। 40 के नियरेस्ट क्या आता है, 40 के नियरेस्ट आता है 50। 50 मतलब क्या होता है, l होता है। 50 मतलब क्या होता है, L होता है। ठीक है, L हो गया है। L में से क्या माइनस करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। L में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। XL मतलब 50 में से 10 को माइनस किया तो 40 हो गया। L लिखा है हमने, L में से हमने क्या किया है, L में से हमने x को माइनस कर दिया है। L में से देखो यहाँ पे रूल में भी लिखा है, देखो द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। जो सिंबल x है वो L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया है, L लिखा है, L में से x को माइनस किया। L मतलब क्या होता है, 50 होता है, 50 में से 10 माइनस किया तो 40 हो गया है। ठीक है, so this is example number 4. Now example number 5. Example number 5 is the 66. 66 है, इसको हम 60 प्लस 6 में कर देंगे। ठीक है, अभी 60, अभी हमने पढ़ा था L मतलब क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, अगर 50 में 10 ऐड कर देंगे, मतलब x को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 60 हो गया। हमने 50, L मतलब क्या होता है, 50, 50 में हमने 10 को ऐड कर दिया, 60 हो गया। अभी 6 मतलब 5i, 5i मतलब क्या होता है, 6 होता है। 5i मतलब क्या होता है, 6 होता है। 60 में हमने क्या किया है, L है, L मतलब 50 है, 50 में 10 को ऐड किया तो 60 हो गया है। 6 से 6 मतलब 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 होता है। अभी इसको कैसे लिखेंगे, L X V I, L X V I, L X V I, ये हमने कर दिया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 इज द 47. 47 है। ठीक है, अभी 47 को हम क्या करेंगे, 40 प्लस 7 कर देंगे। 40 प्लस 7, अभी हमने यहाँ पे लिखा था 40 मतलब क्या होता है, XL मतलब 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 होता है। तो XL मतलब 40 हो गया है। और इसमें हम 7 मतलब I मतलब 7 होता है। ठीक है, हम I को 3 टाइम तक ऐड कर सकते हैं। तो I को हमने दो बार ऐड किया है V में, V मतलब 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये क्या हो गया, XLVII मतलब ये क्या हो गया, 47। तो इसको कैसे लिखेंगे, XLVII मतलब ये क्या हो गया, 47 हो गया। क्या हो गया, 47। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 इज 88. 88 को हम कैसे लिख देंगे, 88 को हम 80 प्लस 8 लिख देंगे, 80 प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्या है, L मतलब क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, अगर 50 में हम x को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, हम x को 3 बार ऐड कर सकते हैं, x को हम 3 बार ऐड कर सकते हैं। अगर हम x में L में अगर x को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, L है, L में x को 3 टाइम ऐड किया है, मतलब ये क्या हो गया, 80 हो गया। क्या हो गया, 80 हो गया। देखो 80 ये नियरेस्ट आता है 100 के,
80 नियरेस्ट आता है 100 के, लेकिन 100 में से हम x को 2 टाइम्स माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो 50 है 50 में 3 टाइम्स x लिखेंगे, क्योंकि 80 मतलब क्या होता है, 80 मतलब होता है LXS, XX मतलब ये 30 और 30 प्लस ये 50 80 हो जाएगा। अभी ये क्या है, 8 है, 8 को हम VI मतलब क्या होता है, 8 होता है, मतलब V मतलब 5 और I 3 टाइम्स मतलब 3, 5 प्लस 3 8, तो ये क्या हो गया, 88 हो गया। अभी LXX VI मतलब ये क्या हो गया है, 88 हो गया। ये क्या हो गया है, 88 हो गया है। देन एग्जाम्पल नंबर 8, ये आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 8 और 10 ये आपको होमवर्क है। कौन सा, 8 एंड 10 ये दोनों होमवर्क है। नाउ 9 में सॉल्व कर रही हूँ, 9 को मैं सॉल्व कर रही हूँ। 99 क्या है, ये 99 है, तो 99 को हम 90 प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 90 है, अगर हम बोलेंगे कि LXXX अगर लिखेंगे तो ये 4 टाइम x का नहीं होता है, 4 टाइम x को हम नहीं लिख सकते, x को हम सिर्फ 3 टाइम्स तक ही लिख सकते हैं। तो 90 तो हम क्या करेंगे, C लेंगे। C मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 में से अगर हम x को माइनस करते हैं, 100 में से अगर x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब XC मतलब क्या हो गया है, 100 हो गया है। 100 में से हमने क्या किया है, x को माइनस किया। C मतलब क्या होता है, 100, 100 में से हमने x को माइनस किया, 100 में से 10 माइनस किया तो 90 हो गया है। प्लस अभी 9 को हम V और I 4 टाइम्स लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि I भी 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब I को माइनस करेंगे, 10 में से I को माइनस करेंगे, मतलब क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 99 को कैसे लिखेंगे, XCIX। C में से 10 को माइनस किया तो 90 हो गया, 9 में से 1 को माइनस किया तो क्या हो गया, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 हो गया, तो ये क्या हो गया, 99 हो गया। XCIX ये क्या हो गया, 99 है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट हियर, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, ये रोमन नंबर है, उसको हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक सिस्टम। सो नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट नंबर XXIX। देखो रूल में लिखा था, अगर 2 ग्रेटर नंबर है, उसमें से 2 ग्रेटर नंबर है और उसके पहले स्मॉल नंबर आता है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम क्या लिख देंगे, XX को लिख देंगे, क्योंकि XX मतलब 20 होता है, और I और X को सेपरेट लिख देंगे, I और X को सेपरेट लिखेंगे। अभी XX मतलब क्या होता है, 20 हो जाएगा, XX मतलब 20 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, 9 है, 10 है, 10 में से 1 को माइनस किया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। x मतलब 10 होता है, 10 ये ग्रेटर नंबर है I से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी x में से अगर हम I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, 9 हो गया। अभी दोनों को मिलाएंगे तो क्या आंसर आ गया है, 29। इसका आंसर कितना आ गया है, 29। देन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, XXXVI। देखो अभी x को 3 टाइम्स लिख देंगे, पहले XXX, फिर उसके बाद VI। VI क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके बाद ये ग्रेटर नंबर है, उसके बाद स्मॉल नंबर आया, मतलब ये दोनों का एडिशन हो रहा है। XXX मतलब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
x 3 टाइम्स है मतलब क्या है, वहाँ पे 30 हो जाएगा। और v प्लस आई मतलब क्या होता है, 6 होता है। ये क्या होता है, 6 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। नाउ फोर्थ नंबर, सॉरी 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, एक्स एल। क्या है, एक्स एल। नाउ लुक एट हियर, एल मतलब क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, 50 एक ग्रेटर नंबर है, 50 एक ग्रेटर नंबर है एक्स से। एक्स मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 50 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 40। क्या हुआ यहाँ पे, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। क्योंकि एक्स मतलब क्या होता है, 10 होता है, एंड एल मतलब क्या होता है, सॉरी एक्स मतलब क्या होता है 10 और एल मतलब 50 होता है। ये ग्रेटर नंबर है। ग्रेटर नंबर के पहले अगर स्मॉल नंबर आता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, एल में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एल मतलब 50, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है, 40। तो थर्ड का आंसर आता है 40। ठीक है, ये इसके तरह ही है। तो ये आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको होमवर्क है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज L X X X X 3 टाइम्स है, उसके बाद I I एंड I। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम पहले L सेपरेट लिख देंगे, देन X X तीनों को सेपरेट लिख देंगे, और उसके बाद I तीनों को सेपरेट लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है L मतलब कितना होता है, 50 होता है। X X मतलब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 30 हो जाएगा, और I 3 टाइम्स है मतलब ये 3 हो जाएगा। 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 3 83। क्या आंसर मिल गया है, 83। L मतलब 50 होता है, X X मतलब होता है 30, I मतलब क्या होता है, 3 होता है। अभी तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना बेटा है, 83। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 इज सेम लाइक दैट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 also homework for you, and now I am solving here example number 8 and 9. Okay, then 10 also homework for you. Which homework for you? Example number 4, then 6, 7 and 10. This is the homework for you. Now I am solving here 8 and 9. Okay, so now look at here example number 8. एग्जाम्पल नंबर 8 इज एक्स सी वी। क्या है, एक्स सी वी। सी मतलब क्या होता है, 100 होता है। लुक एट हियर, सी मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, सी मतलब होता है 100, और ये क्या है, एक्स है। एक्स मतलब क्या हो जाएगा, सी में से सी मतलब 100 है, और ये एक्स क्या है, स्मॉल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, ये सी में से, सी मतलब 100 है, 100 में से सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे एक्स सी प्लस वी। सी मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 में से अगर 10 को माइनस करेंगे, सी मतलब 100 होता है, एक्स मतलब 10 होता है। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होता है, 90 होता है, और वी मतलब 5 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 95। सी मतलब 100 होता है, एक्स मतलब होता है 10। अगर बिग नंबर है और उसके पहले स्मॉल नंबर आता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे 100 है, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 होता है, और यहाँ पे 5 है, वी मतलब 5 होता है, और 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 इज एक्स सी I and I. These also same like that. ठीक है, सबसे पहले हम एक्स सी को लिख देंगे, और उसके बाद लिख देंगे I को 3 टाइम्स।
XC मतलब क्या होता है, 90 होता है, ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पे देखा था। और I 3 टाइम्स है मतलब 3 है, तो ये कितना आ गया है, 93 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया है, 93 हो गया। XC मतलब क्या होता है, 90 होता है, और I 3 टाइम्स में मतलब 3 है। 90 + 3 कितना हो गया, 93 हो गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9. Now example number 10. This is homework for you. Now look at here. Common mistake. Find the explain the mistake in the following Roman number. ये जो mistake है हमें नहीं करना है। देखो अभी find the mistake. यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, 14 है। 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x 4 टाइम आई। जो आई होता है वो 4 टाइम नहीं होता है। अगर हमें 14 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे और उसके बाद आई लिखेंगे और v लिखेंगे, क्योंकि v मतलब क्या होता है, 5 होता है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 होता है, और x मतलब 10 होता है। तो जब हम 14 को लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, एक्स आई वी लिखेंगे। इसको आई को 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे। देन 9 को हम वी लिख के उसके बाद 4 टाइम्स आई को नहीं लिखेंगे। जब हमें 9 को लिखना है तो हम x में से आई को माइनस करेंगे, मतलब आई एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9। देन 40, जब 14 को लिखेंगे तब हम 4 टाइम्स x को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, l में से x को माइनस करेंगे। l में से x को माइनस करेंगे तो क्या होता है, 14 होता है। और जब हमें 15 को लिखना है तब हम v को 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, v 1 टाइम ही लिखते हैं, उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो रिपीट नहीं होता है। जब हमें 15 को लिखना है तो हम x प्लस v लिखेंगे। x प्लस v मतलब क्या होता है, 15 होता है। x में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 15 होता है। जब हमें 25 को लिखना है तब हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया, x को 2 टाइम्स लिखा है और 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया और 25 लिखा है, तो वैसे नहीं लिखेंगे, हम x लिखेंगे और v लिख देंगे। x v मतलब क्या होता है, 25 होता है। तो हमें 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अगर हमें 25 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x v लिखेंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना था कौन सी मिस्टेक हो गई। नाउ लुक एट हियर, मैथमेटिक्स ए फॉर अ कंसेप्ट स्किल। ये आपको क्या है, ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही दिया है, तो ये आपको क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आपको क्या है, होमवर्क है। और ये आप प्रोजेक्ट समझ लो, ये आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है, फिर इसका फ़ोटो निकाल के मुझे सेंड करना है, या इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स ए फॉर अ कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन स्किल, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको उसको फ़ोटो निकाल के आपको मुझे सेंड करना है। मैथमेटिक्स ए के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड यूर टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चन आंसर थे, उसके ही रिलेटेड है। तो ये आपको प्रोजेक्ट है, ये सबको कंपलसरी है, आपको इसका फ़ोटो निकाल के सेंड करना है टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करके। देन नाउ लुक एट हियर, मैथमेटिक्स बी फॉर अ हायर स्किल। So now we will solve मैथमेटिक्स बी फॉर अ हायर स्किल। मैथमेटिक्स ए यह आपको होमवर्क है, आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। सो नाउ लुक एट फर्स्ट MCQs, फर्स्ट नंबर, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 1987 प्लस 5248 बाय राउंडिंग ईच नंबर टू नियरेस्ट 10 इज। हमें क्या करना है, एस्टिमेट वैल्यू मतलब पहले ये दोनों को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करने के बाद हमें इसकी नियरेस्ट 10 वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, नियरेस्ट 10 वैल्यू निकालनी है। नाउ लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे एडिशन किया है। सो फर्स्ट नंबर इज 1987 एंड सेकंड नंबर इज द 5248। अगर हम दोनों को मिला देंगे, 1987 में 5248 को मिला देंगे तो हमें आंसर मिलता है 7235। हमें नंबर क्या मिलेगा, 7235। सो 7235 ये कौन से
टू नंबर के बीच में आता है, राउंडेड 10 पूछा है, तो 7230 एंड 7240 इसके बीच में आता है 7235। हमने 30 और 40 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 10 है इसलिए। अभी देखो 35 है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हाफ नंबर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे 5 है मतलब वो नेक्स्ट वाले नंबर की राउंडेड वैल्यू की, तो इसकी राउंडेड वैल्यू क्या हो जाएगी 7240। इसकी राउंडेड वैल्यू क्या हो जाएगी 7240। तो इसका आंसर आता है बी नंबर 7240। दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमें नियरेस्ट 10 राउंडेड वैल्यू निकालनी, नियरेस्ट 10 राउंडेड वैल्यू निकालनी। तो इसका आंसर कितना आ गया 7240 आ गया। देन एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन मिलियन। 1 लैक्स में कितने मिलियंस होते हैं वो निकालना है। तो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में था उसमें हमने पढ़ा था, तब हमने ये रूल यूज़ किया था x इंटू, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन मिलियन, तो हमने x इंटू लैक किया है इक्वल टू 1 मिलियन किया है, इक्वल टू 1 मिलियन किया है। x लिखा है 1 मिलियन लिखा है, उसकी डिवाइडेड बाय 1 लाख किया। अभी 0 को कैंसिल किया तो कितना बचता है 10, मतलब 1 lakhs are there in million. How many lakhs in there? 10. तो इसका आंसर कितना आता है 10 आता है। देन एग्जाम्पल नंबर 3, 45,789 इज बिगर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 45,789 ये किस नंबर से बड़ा नंबर है, तो 2,45,789 ये इससे बड़ा है, हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। 55,789 ये भी इससे बड़ा है, 46,789 ये भी इससे बड़ा है। नाउ 45,689, सो 45,689 ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो 45,689 ये क्या है स्मॉलेस्ट है, 45,000 इससे स्मॉलेस्ट है 45,789। 45,789 इज अ बिगर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये किससे बिगर है वो निकालना था। देन 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड रोमन नंबर, इसमें से कौन सी रोमन नंबर वैलिड है, तो आई को 4 टाइम नहीं लिखते तो ये वैलिड नहीं है, वी को 1 टाइम लिखते तो ये वैलिड नहीं है, देन एल को हम 2 टाइम्स नहीं लिखते 1 टाइम ही लिखते हैं तो ये भी वैलिड नहीं, तो ये वैलिड क्या है, एक्स को 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, एक्स 3 टाइम्स मतलब क्या होता है 30 होता है, मतलब क्या होता है 30 होता है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4. Now look at here, higher order things. So first number, look at here, question number 5, answer the following question. What place is just to a right of the 1000 के राइट वाले साइड में क्या होता है, ये यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू के नंबर लिखते हैं, ठीक है। 1s आता है, फिर उसके बाद 10s आता है, 1 10s 100 आता है, फिर 1000 आता है, देन 10,000 आता है, देन लाख आता है, देन 10 lakhs आता है, ठीक है। हमने यहाँ तक लिख दिया, फिर करोड़ आता है, ये हमने प्लेस वैल्यू लिखा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1000 है, ये वाला 1000 नंबर है, उसके राइट वाली साइड मतलब ये वाली राइट साइड है, तो ये 10,000 हो गया, ये 1000 है, ये 1000 है, 1000 के राइट वाले साइड में क्या आता है 100 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1000 के राइट साइड पे कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, तो वो क्या आंसर आता है 100 आता है। द प्लेस वैल्यू आर जस्ट लेफ्ट ऑफ द 100 प्लेस, 100 के लेफ्ट वाले प्लेस पे देखो, अभी ये 100 है, 100 के लेफ्ट वाला, ये वाला लेफ्ट है, 100 है, 100 के लेफ्ट वाले प्लेस पे क्या आता है 1000 आता है, तो इसका आंसर क्या आता है 1000। 100 के लेफ्ट वाले साइड में 1000 आता है और 1000 के राइट साइड में 100 आता है। व्हाट प्लेस जस्ट अ राइट ऑफ द 10,000 प्लेस,
10,000 है, ये देखो ये 10,000 है, 10,000 के राइट साइड पे, 10,000 के राइट साइड पे क्या आता है, 1000 आता है, तो इसका आंसर क्या आता है, 1000। द प्लेस इज जस्ट अ लेफ्ट ऑफ द 10,000 राइट, ये 10,000 है, 10,000 के लेफ्ट वाले साइड पे क्या आता है, लैक्स आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैक्स, क्या आ जाएगा इसका आंसर, लैक्स आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द दीपू गॉट 84 मार्क्स एंड नीता गॉट 76 मार्क्स इन अ टेस्ट, द टीचर राउंडेड ऑफ द मार्क्स टू अ नियरेस्ट 10, डू यू थिंक्स इट वॉज अ फेयर टू अ टीचर टू डू दिस। देखो दीपू को 84 मार्क मिल गए हैं, नीना को 76 मार्क मिल गए, तो टीचर ने उन दोनों के राउंडेड वैल्यू किए, तो 84 के राउंडेड वैल्यू करेंगे तो 80 होता है, और 76 के भी राउंडेड वैल्यू करेंगे तो 80 होता है। तो टीचर ने राउंडेड वैल्यू की है, तो ये दोनों का मतलब फेयर हो गया कि ये पूछ रहे, तो नो, बोथ राउंडेड वैल्यू इज 80 वेयर एज देयर इज अ 8 मार्क डिफरेंट बिटवीन द टू, दोनों के डिफरेंट कितना होता है, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है। अगर 80 में से हम 76 को माइनस करेंगे तो 4 होता है, और 84 में से 80 माइनस करेंगे 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, और दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट होता है 8 मार्क्स का, तो ये दोनों का फेयर नहीं हुआ है। सो दिस इज मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 7, 8, 9 एंड 10 ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये आपको होमवर्क है, 10 और 11 आल्सो, ठीक है। यू आर न्यूज़पेपर रिपोर्टर, यू गॉट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू हैव यूज इंफॉर्मेशन, राइट इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, प्रिपेयर द हेडलाइन फॉर ईच इंफॉर्मेशन एंड राउंडेड द नंबर। यहाँ पे क्या करना है, राउंडेड करना है नंबर, ठीक है, इसको राउंडेड करना है, तो ये भी आपको होमवर्क है। 7, 8, 9, 10 एंड 11 दीज आर द होमवर्क फॉर यू, ये भी होमवर्क है। एंड मैथमेटिक्स ए ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है, और इसको टेक्स्ट बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नोटबुक में ही लिखना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नाउ नेक्स्ट लेसन वी विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड।